یہ ہے آپ کی جغرافیہ کی کتاب اور آج ہم پڑھیں گے طبعی ساخت اور آبی نظام۔ چاکلیٹی کلر میں پہاڑ ہیں، یہاں سے دیکھیے یہ ہمالیہ کے پہاڑ، یہاں تک ہم شیئر کرتے ہیں ہمالیہ کو۔ اس کے بعد میں شمالی بھارت کا میدانی علاقہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں یہ سطح مرتفع جو ہے نا جزیرہ نما، جو ابھی آپ کی میں نے پڑھا تھا جزیرہ نما بھارت۔ جزیرہ نما بھارت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، وسطی بلند علاقہ اور یہ جزیرہ نما سطح مرتفع۔ تو اب یہ آپ کی کتاب میں یہ پورے علاقے کو کیا کہا گیا ہے؟ جزیرہ نما بھارت، ٹھیک ہے۔ اور یہ مشرقی ساحلی علاقہ، مشرقی گھاٹ، مغربی ساحلی علاقہ اور مغربی گھاٹ، اور یہاں پہ لکشدیپ ہے، جزیرے لکشدیپ ہے، اور یہاں پہ جزیرے انڈمان نکوبار ہے۔ یہ سب سے پہلے ہمالیہ کی معلومات حاصل کریں۔ ہمالیہ ایک جدید لہرےدار پہاڑ ہے۔ ہمالیہ تاجکستان کی پامیر سطح مرتفع سے مشرق تک پھیلا ہوا ہے۔ براعظم ایشیا کا یہ اہم پہاڑی نظام ہے۔ بھارت میں جموں کشمیر سے لے کر آسام تک پھیلا ہوا ہے۔ ہم ہمالیہ کو نیپال، بھوٹان اور پاکستان اور چین کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ اب اس شکل کو غور سے دیکھیے اور میری بات پر کان دھریے۔ یہ ہمالیہ کی ڈیٹیل میں شکل ہے، یہاں پہ میں نے ایک اشارے کا نشان بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جنوب سے، یعنی جو جنوب کا جو سلسلہ ہے پہاڑی سلسلہ، ہمالیہ صرف ایک ہی پہاڑی سلسلہ نہیں ہے بلکہ ہمالیہ میں کئی متوازی پہاڑی سلسلے ہیں، اور اس کا سب سے جنوبی پہاڑی سلسلہ جو ہے اسے شیوالک کا پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی یہ سب سے جدید پہاڑی سلسلہ ہے۔ کون سا؟ شیوالک کا پہاڑی سلسلہ۔ شیوالک پہاڑی سلسلے سے جیسے جیسے ہم شمال کی سمت جاتے ہیں، شیوالک کے پہاڑی سلسلے سے جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں، ویسے ہم کو ملتا ہے بیرونی ہمالیہ، اس کے بعد اصغر ہمالیہ، اور یہ ہے اکبر ہمالیہ۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کلومیٹر سے فرق پڑتا ہے، جیسے جیسے ان کی بلندی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ان کے نام جو ہیں وہ اور بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اصغر کا مطلب تو آپ کو پتا ہے چھوٹا، اور اکبر کا مطلب بڑا، یعنی گریٹ ہمالیہ جو ہے وہ یہاں پر ہے، ان کی بلندی کی وجہ سے ان کو یہ نام دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تبت کی سطح مرتفع ہے۔ ابھی آپ نے جو ہمالیہ کی معلومات حاصل کی، جنوب سے شمال کی طرف گئے تھے، مغرب سے مشرق کی سمت جاتے ہیں تو اس طرح نام دیے گئے ہیں، اس اونچائی کے حساب سے تھے، یہ وسعت کے حساب سے ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ مغرب کی طرف سے دیکھیں گے تو کشمیری ہمالیہ آتا ہے، اس کے بعد میں آتا ہے وسطی ہمالیہ جو کماؤ ہمالیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے بعد میں یہاں پر ہے مشرق میں، ہمارے بھارت کے مشرق میں ہے اس لیے اس کو مشرقی ہمالیہ کہتے ہیں، یعنی یا پھر آسام ہمالیہ کہتے ہیں۔ قدرتی حصہ ہمالیہ کے جنوبی دامن سے بھارتی جزیرہ نما کی شمالی سرحد تک پھیلا ہوا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمالیہ کے جنوب میں ہے، اور یہ جو بھارتی سطح مرتفع ہے نیچے کے علاقے میں، یہ جو بھارتی سطح مرتفع ہے اس کے اوپر کی طرف ہے، اس کے شمال کی طرف ہے۔ ساتھ ہی وہ مغرب میں راجستھان، پنجاب سے لے کر مشرق میں آسام تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ حصہ تقریباً نشیبی اور ہموار ہے۔ شمالی بھارت کے میدانی علاقے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کوہ اراولی کی مشرقی سمت کا حصہ گنگا ندی کی وادی کا علاقہ ہے۔ اس میدانی علاقے کو گنگا کا میدان کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کی ڈھلان مشرقی سمت ہے۔ بھارت کی ریاست مغربی بنگال کا زیادہ تر حصہ اور بنگلہ دیش مل کر گنگا برہمپتر نظام کا ڈیلٹائی علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے کو سندربن کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹائی علاقہ ہے۔ شمالی بھارت کے میدانی علاقے کے مغربی حصے میں صحرا ہے، یعنی ریگستان ہے۔ یہ تھر یا مروستھلی کے نام سے
मशहूर है। राजस्थान का बेशतर हिस्सा इस सहरा से घिरा हुआ है। इसके शुमाली हिस्से को पंजाब का मैदानी इलाका कहते हैं, जो अरावली पहाड़ और दहली पहाड़ी सिलसिले के मगरबी सिमत में फैला हुआ है। इस मैदान की तख्लीक सतलज और इसके माउन दरियाओं की इज्तिमाकारी से हुई है। पंजाब के मैदान की उमूमी ढलान मगरिब की जानिब है। इस मैदानी इलाके की मिट्टी जरखेज होने की वजह से यहाँ ज़राअत का पेशा बड़े पैमाने पर किया जाता है। शुमाली भारत के मैदानी इलाके की जुनूबी सिमत में फैला हुआ और बहरी हिंद की सिमत बतदरीज पतला होता हुआ इलाका भारतीय जजीरा नुमा कहलाता है। इसमें कई छोटे बड़े पहाड़ और सतह मुर्तफा हैं। इसके शुमाली सिमत यानी ऊपर की तरफ कोहे अरावली ये सबसे कदीम और लहरेदार पहाड़ है। में हमवार मैदान की सरहदें मुतय्यन करने के लिए सतह मुर्तफा के सिलसिले दरमियानी हिस्से में विंध्या सतपड़ा, मगरिबी घाट और मशरिकी घाट के पहाड़ी सिलसिले हैं। अब आइए साहिली इलाके की मालूमात हासिल करें। हमारा हिंदुस्तान तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। भारत को तकरीबन 7,500 किलोमीटर लंबा साहिल दस्तयाब है। ये साहिली इलाका जजीरा नुमा की मशरिक और मगरिबी जानिब वाक़ है। इन दो साहिली इलाकों में नुमाया फर्क है। मगरिबी साहिल बहरे अरब से मुत्सल है यानी लगा हुआ है। ये साहिल चट्टानी है, कटा फटा साहिल है। ये कई पहाड़ियों की शाखें मगरिबी साहिल तक फैली हुई हैं। मगरिबी साहिली इलाके की चौड़ाई कम है। मगरिबी घाट से निकलने वाले बहुत सारे तेज रफ्तार छोटे दरिया इसी साहिल पर उतरते हैं, इसलिए इन दरियाओं के दहाने पर खाड़ियां तैयार हो गई हैं। इसलिए यहाँ डेल्टाई इलाका नहीं पाया जाता। मशरिकी साहिल खलीजे बंगाल से लगा हुआ है। ये साहिल दरियाओं की इज्तिमाकारी के सबब बना है। मशरिकी सिमत से बहने वाले कई दरिया मगरिबी घाट से बहते हुए मशरिकी घाट से होते हुए इस साहिल पर आकर मिलते हैं। दूर से आने वाले कई दरिया मशरिकी साहिल पर जमीन की सुस्त ढलान के सबब कम रफ्तार से बहते हैं, इसलिए इनके जरिए बहाकर लाए हुए गाद का इज्तिमा यानी कीचड़ का ढेर इन साहिली इलाकों पर नजर आता है। इन दरियाओं के दहाने पर डेल्टाई इलाके तैयार हो गए हैं। भारत के साहिल से लगकर कई छोटे बड़े जजायर हैं। इनका शुमार साहिली जजायर के ग्रोह में किया जाता है। इसके अलावा बहरे अरब और बहरिए बंगाल में जजायर का एक एक मजमुआ भी है। बहरे अरब के जजायर के मजमुए को लक्षद्वीप कहा जाता है, जबकि बहरिए बंगाल के जजायर के मजमुए को अंडमान निकोबार जजायर का मजमुआ कहा जाता है। लक्षद्वीप के ज्यादातर जजायर मूंगों के इज्तिमा से बने हुए कंगननुमा जजायर हैं। ये ज्यादा वसी नहीं है और इनकी बुलंदी भी बहुत ज्यादा नहीं है। अंडमान निकोबार जजायर के मजमुए बिलखुसूस आतिशफिशानी जजायर हैं। ये वसअत में बड़े हैं। इनके अंदरूनी इलाकों में ऊंची पहाड़ियां हैं। इस मजमुए के बैरन जजीरे पर भारत का वाहिद जिंदा आतिशफिशा है। निकोबार के मजमुए के कुछ जजायर हलाली यानी कंगननुमा शक्ल के हैं। ब्राजील के नक्शे पर सरसरी नजर डालने पर आपके जहन में आएगा कि ब्राजील की सरजमीन का ज्यादातर हिस्सा ऊंची जमीन, सतह मुर्तफा और छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ब्राजील में बहुत दूर तक फैले हुए और बहुत बुलंद पहाड़ नहीं है। शुमाल में
अमेज़न की वादियां और जुनूब मगरबी सिमत की जानिब पैराग्वे दरिया के मनबे का इलाका छोड़कर वसी मैदान बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं। साहिली इलाकों में भी मैदान वसी नहीं है। ब्राजील के दर्ज झैल कुदरती हिस्से हैं: बुलंद जमीनी इलाका, दीवार नुमा अजीम उमूदी चट्टान, साहिली इलाका, मैदानी इलाका और जज़ायर का मजमुआ। बुलंद जमीनी इलाके के बारे में मालूमात हासिल करें। जुनूबी ब्राजील वसी सतह मुर्तफा से घिरा हुआ है। इसे ब्राजील की सतह मुर्तफा, ब्राजील की बुलंद जमीन या ब्राजील की ढलानी इलाके जैसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ब्राजील और गयाना ढलानी इलाके मजमूई तौर पर बर्रे-आज़म जुनूबी अमेरिका के मरकजी इलाके माने जाते हैं। गयाना की बुलंद जमीन का अहम खित्ता वेनेजुएला मुल्क में है। ये बुलंद जमीन मशरकी सिमत में फ्रेंच गियाना तक फैली हुई है। गियाना की बुलंद जमीन ब्राजील की शुमाली जानिब रोराइमा, पारा और अमापा रियासतों में फैली हुई है। ब्राजील में इस बुलंद जमीन का कम बुलंदी वाला हिस्सा आता है, लेकिन ब्राजील की बुलंद तरीन चोटी पिको दी नेबोलिना ब्राजील और वेनेजुएला की सरहद पर है। इसकी बुलंदी 3014 मीटर है। ब्राजील की बुलंद जमीन की जुनूब और मशरिकी सिमत के खित्ते में ऊंचाई 1000 मीटर से जायद है, लेकिन दीगर खित्तों में बुलंदी 500 से 1000 मीटर के दरमियान है। बुलंद जमीन की ऊंचाई शुमाली सिमत में बतदरीज कम होती जाती है और इस सिमत में ढलान ज्यादा तेज नहीं है। इस ढलान से बहने वाली अमेज़न की झैली नदियों में छोटे बड़े आबशार दिखाई देते हैं। शुमाल की जानिब ढलान ज्यादा तेज होने के बावजूद गैर मामूली नहीं है। कई दरिया बुलंद जमीन के शुमाली हिस्से से निकलते हैं और बहरे ओकियानूस में जा गिरते हैं। बुलंद जमीन की जुनूबी ढलान में पैराग्वे, पेरीना, उरुग्वे वगैरह दरिया निकलते हैं और आगे वो मुल्क अर्जेंटीना की जानिब बहते हैं। बुलंद जमीन की मशरिकी सिमत की ढलान बहुत तेज है, जो दीवार या उमूदी चट्टान की शक्ल में नजर आती है। उमूदी चट्टान ये तबई हिस्सा रकबे के एतबार से सबसे छोटा होने के बावजूद अपनी ढलान की नौइयत और इसके आबोहवा पर होने वाले असरात की वजह से एक मुनफरद तबई हिस्सा माना जाता है। बुलंद जमीन की मशरिकी जानिब का ये हिस्सा उस उमूदी चट्टान की वजह से मुनफरद हिस्सा बन गया है। इस खित्ते में बुलंद जमीन की ऊंचाई 790 मीटर है। कुछ इलाकों में ये ऊंचाई बतदरीज कम होती गई है। साओ पाउलो से पोर्टो एलिग्रे के खित्ते में ये बुलंदी सीधी एक ही ढलान में उतरती है। अजीम उमूदी चट्टान के सबब जुनूब मशरिकी तिजारती हवाएं रुक जाती हैं, इसलिए अजीम उमूदी चट्टान के उकब में बारह का इलाका तैयार होता है। इस इलाके की शुमाली सिंध के इलाके को खुश्की का चौगोशा कहा जाता है। अब आइए साहिली इलाके की मालूमात हासिल करें। ब्राजील को तकरीबन 740 किलोमीटर लंबाई का साहिली इलाका मयस्सर है। इस साहिली इलाके को दो हिस्सों शुमाली साहिली इलाका और मशरिकी साहिली इलाके में तकसीम किया जाता है। शुमाल में अमापा से लेकर मशरिक में रियो ग्रांडे दो नॉर्ते तक के साहिल को शुमाली बहरे ओकियानूस का साहिल कहा जाता है। वहां से आगे
जुनूबी सिमत फैले हुए साहिल को मशरकी साहिल कहते हैं। मशरकी साहिल पर अमेज़न के कई दरिया आकर मिलते हैं, इसलिए ये साहिल नशेबी बन गया है। इस साहिल पर माराजो जजीरा, खलीजे माराजो और खलीजे साउ मार्कोस वगैरह हैं। माराजो बड़ा साहिली जजीरा है। ये अमेज़न और टोकिंस्टन दरियाओं के दहाने के दरमियान तैयार हुआ है। मशरकी सिंध के साहिल पर कई छोटे दरिया आकर मिलते हैं। इस खित्ते में साउ फ्रांसिस्को एक बड़ा दरिया है जो बहरे ओकियानूस में जा मिलता है। इसके साहिल पर दूर तक फैले हुए रेतीले साहिल और रेतीले टीले जगह जगह दिखाई देते हैं। कुछ हिस्सों में इस साहिल की हिफाजत मूंगों के चबूतरों और मूंगों के जजायर के जरिए होती है। आइए अब मैदानी इलाके की बात करें। ब्राजील में मैदानी इलाके दो हिस्सों में नजर आते हैं। शुमाल में अमेज़न वादी का हिस्सा और जुनूब मगरिब में पैराग्वे पैरीना दरियाओं का हिस्सा। अमेज़न ब्राजील का सबसे वसी व अरीज मैदानी इलाका है। अमेज़न मैदान की उमूदी ढलान मशरकी जानिब है। अमेज़न वादी ब्राजील की मगरिबी सिमत खूब चौड़ी यानी 1300 किलोमीटर होने की वजह से दो बुलंद जमीनें यहाँ बहुत करीब आ जाती हैं। यहाँ चौड़ाई 240 किलोमीटर तक रह जाती है। जैसे जैसे अमेज़न दरिया बहरे ओकियानूस की जानिब बढ़ता है, वैसे वैसे मैदान की चौड़ाई बढ़ती जाती है। ये मैदानी इलाका पूरे तौर पर जंगलों से घिरा हुआ है। बार बार आने वाले सैलाब और जंगलों के निचले हिस्सों में जमीन पर बढ़ने वाली नबातात के सबब ये मैदानी इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार है। अमेज़न की वादी में मुंतके हारा के बारानी जंगलात हैं। ब्राजील का दूसरा मैदानी हिस्सा यानी ब्राजील की बुलंद जमीन के जुनूब मगरिबी सिमत के पैराग्वे पैरीना दरियाओं के मनबे की जानिब का इलाका है। पैराग्वे के मनबे के इलाके की ढलान जुनूबी सिमत में है, जबकि पैरीना दरिया की ढलान जुनूब मगरिबी सिमत में है। पैंटानाल दुनिया के मुंतके हारा के दलदली जमीनों में से एक इलाका है। ये इलाका ब्राजील की बुलंद जमीन के जुनूब मगरिबी सिमत में फैला हुआ है। ये एक दलदली इलाका है जो ब्राजील की माटो ग्रासो दो सुल रियासत में वाक़ है। पैंटानाल का फैलाव ब्राजील की तरह अर्जेंटीना में भी दिखाई देता है। अब आइए ब्राजील के जजायर की मालूमात हासिल करें। असल सरजमीन के अलावा मुल्क ब्राजील में कुछ जजायर का शुमार होता है। इनकी दर्जाबंदी साहिली जजायर और समंदरी जजायर में की जाती है। बेशतर साहिली जजायर इज्तिमाकारी से बने हैं। समंदरी जजायर असल सरजमीन ही से बने हैं। समंदरी जजायर असल सरजमीन से 300 किलोमीटर दूर बहरे ओकियानूस में वाक़ हैं। ये जजायर अक्सर चट्टानी हैं। ये ज़ेरे आब पहाड़ों की चोटियों का हिस्सा हैं। जुनूबी बहरे ओकियानूस के साहिली इलाकों के जजायर मूंगों के जजायर हैं। ये कंगन नुमा जजायर कहलाते हैं।